हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मुकेश कुमार दोनों योर बायोलॉजी एजुकेटर। और आज मैं लेने वाला हूँ 8th क्लास का चैप्टर नंबर 10। दिस इज adolescence and puberty, the reaching at the age of adolescence. This is the title of your chapter. So we are taking two major topics here, adolescence and puberty. What is adolescence? Adolescence is the age that connects your childhood to your youngerhood. Adolescence in between the ages 0 to 9. This is the stage of your childhood, and 21 to 45 to 50, this is the age of your youngerhood. In between the age of these two stages, that's called adolescence. Means 10 to 19 age, this is the age of your life, that is called adolescence, also known as teenage. This is also known as teenage. Before the teenage, you will be here 0 to 10-year age, that is called childhood. And after 19 to 40 and 45 age, you will younger. That's why it is called adulthood, also known as adulthood or youngerhood. जहाँ सेक्सुअल मेच्योरिटी फिनिश हो जाती है, सेक्सुअल मेच्योरिटी कंप्लीट हो जाती है. दिस इज द स्टेज ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ सेक्सुअल मेच्योरिटी. ये एज है जहां पर सेक्सुअल मेच्योरिटी स्टार्ट हो रही. एंड आफ्टर 40 to 45 एज यू विल बी इन अ स्टेज ऑफ सेनेसेंस, मीन्स बुढ़ापा. दैट तक हो जाएगा. So what is adolescence? The transition period between the childhood and adulthood, it takes 10 to 19 years. That is the adolescence or teenage age. ये एक वो स्टेज है जहां पर सेक्सुअल मेच्योरिटी होती है. तो सेक्सुअल मेच्योरिटी कहां से स्टार्ट हो रही है? 10 एज पर. दैट इज द पीरियड दैट इज कॉल्ड प्यूबर्टी. The period of onset of sexual maturity, adolescence और teenage का वो टाइमिंग जहां पर सेक्सुअल मेच्योरिटी स्टार्ट हो रही है, इनिशिएशन हो रहा है, ऑनसेटिंग हो रही है. दैट इज द एज ऑफ ऑनसेटिंग ऑफ द सेक्सुअल मेच्योरिटी, द स्टार्टिंग ऑफ सेक्सुअल मेच्योरिटी. दैट एज इज कॉल्ड प्यूबर्टी. दिस इज कॉल्ड प्यूबर्टी. नाउ कम टू द टॉपिक, द पर्टिकुलर चेंजेस वी कैन सी ड्यूरिंग द प्यूबर्टी. प्यूबर्टी के दौरान आप कुछ स्पेसिफिक टाइप के चेंजेस देख सकते हैं. These changes are called primary and secondary sexual characters. Primary and secondary sexual characters are occurring because of the levels of increasement of inner sexual glands and their hormones. Like regulation of changes of puberty and because of the hormones, means sex hormones. Apart of this, other hormones are also responsible for these changes, and these hormones are related. The particular glands which are known as endocrine glands are also known as sexual glands, like testes, ovary, thyroid, adrenal gland. These are the all glands are related to the puberty, are supporting them also. Voice changes, sweat and oil changes, physical appearance changes, typical hair patterns present on armpits and gonadal glands and their area. Sex organs means testes, ovary, vagina, penis changes. Changes in behavior, attitude and emotional maturity. ये सारे के सारे चेंजेस आप सेकेंडरी एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी चेंजेस, सेकेंडरी कैरेक्टर्स में आते हैं. लाइक फर्स्ट, वॉइस इज रिलेटेड टू द थ्रोट एरिया where sound box is present. This is also known as larynx, और इसका कॉमन नेम है एडम्स एप्पल्स. ये एडम एप्पल्स है वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से यहां पर वाइडर हो जाता है इन बॉयज, पर गर्ल्स में नैरो रहता है. वाइडर वॉइस हो जाती है. बेसिकली हैवी वॉइस इसके वाइडर शेप की वजह से होती है.
the Adam's apple or larynx we can see in boys clearly because boys के अंदर ये बड़ा होता है, शेप में वाइड होता है, पर गर्ल्स के अंदर ये नैरो होता है, इसलिए गर्ल्स की जो वॉइस होती है वो हाई पिच्ड वॉइस होती है, हैवी वॉइस नहीं होती। तो ये एक वॉइस में चेंज होना बिकॉज ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, बिकॉज ऑफ सिक्रेशन ऑफ हार्मोन, सेक्सुअल हार्मोन। स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड, आर्म पिट, स्किन पर से जहां हेयर्स होते हैं वहां स्वेट ग्लैंड ज्यादा जनरेट हो जाती है और बेसिकली वो स्वेट और ऑयल सिक्रेशन करती है। ये भी यहां पर सिक्रेशन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आता है। फिजिकल अपीयरेंस, मस्कुलाइन बॉडी इन अ मेल एंड फेमिनाइन बॉडी इन फीमेल, ग्रेसफुल अपीयरेंस क्रिएट करती है। जहां पर बॉयज के जो शोल्डर्स होते हैं वो वाइडर होते हैं, चेस्ट वाइडर होती है, बट गर्ल्स के अंदर ये वाइडर शोल्डर्स नहीं होते, चेस्ट है वो हैवी होती है बिकॉज ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट। एंड गर्ल्स के अंदर जो पेल्विक रीजन होता है वो वाइडर होता है एज कंपेयर टू बॉयज। दिस इज द चेंजेस इन फिजिकल अपीयरेंस, और बॉडी में चेंजेस हो रहा है बेसिकली। इसके साथ में ही बॉडी में ग्रेसफुल अपीयरेंस होता है गर्ल्स में और एरोगेंस और एग्रेसिव अपीयरेंस होता है बॉयज में। टिपिकल हेयर पैटर्न, टिपिकल हेयर्स उन हेयर्स को कहते हैं जो आर्मपिट्स में आते हैं, आपके सेक्सुअल पार्ट्स के हेयर एंड देयर फॉर्म में आते हैं। दिस इज बिलोंगिंग टू योर सेक्सुअल मैच्योरिटी, राइट। अपार्ट ऑफ दिस, मेल के अंदर है वो बियर्ड और चेस्ट रीजन के अंदर जो हेयर्स की प्रेजेंसी है एज कंपेयर टू बॉय गर्ल्स ये ज्यादा होती है, बियर्ड वहां एब्सेंट है, बट चेस्ट और पूरी बॉडी में, ऑल ओवर बॉडी, यहां पर हेयर्स का प्रेजेंसी बॉयज में ज्यादा है। सेक्स ऑर्गन्स, पेनिस is a male copulatory organ will develop here in a male and vagina will develop and in a mature position it will be in a female. Ovary, uterus, the all female reproductive system will be in an improved and developed form. And male reproductive system, scrotum sac, testes, sperm duct and penis. These are the developments. Change in behavior, attitude and emotional maturity at the age of puberty due to the secretion or increment of the levels of hormones, sex hormones. There will be changes in behavior of boys and girls separately. Attitude and emotional maturity will also changes. Emotional maturity will also come because of the secretion of male and female sex hormones in a particular male and female human beings, मेल बॉयज और फीमेल गर्ल्स के अंदर इस तरह से आते हैं। these are belonging to the primary and secondary changes. Regulation in change in puberty, hormones and endocrine glands. Sex hormone testosterone is the male sex hormone which is secreted from testes because testes is a male sex gland or male sex organ which is present in a male, and estrogen and progesterone is a female sex hormone related to the ovary. So ovary is a female sex gland or part, right? Apart of this, ये hormones body के अंदर sexual maturity male और female में create करते हैं. This is the hormonal regulations. So at the age of puberty, at the age of adolescence, ये सारे के सारे hormones का level सडन बढ़ता है तो बॉडी में बहुत से चेंजेस आते हैं, वॉइस में, फिजिकल अपीयरेंस में, आर्मपिट्स के एरिया में, हेयर्स में, सेक्स ऑर्गन्स की मैच्योरिटी में, बिहेवियर, एटीट्यूड और इमोशनल मैच्योरिटी, ये सारे चेंजेस है वो सेक्स हार्मोन्स के सिक्रेटी पे सिक्रेशंस के लेवल्स बढ़ जाने पर वजह से होता है। नेक्स्ट बात करें रिप्रोडक्टिव फेजेस। रिप्रोडक्टिव फेज मींस द पर्टिकुलर साइक्लिक प्रोसेस ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन। मेल के अंदर गैमेट फॉर्मेशन होता है, उसका स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन कहते हैं। ये सडन ही स्पर्म फॉर्मेशन हुआ है वो बिकॉज ऑफ हार्मोन, सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। और फीमेल के अंदर जो ओवा फॉर्मेशन होता है, ओवा का रिलीज होना होता है, और ओवा यदि यूटिलाइज नहीं हुआ तो बॉडी से बाहर उसको ब्लीडिंग फॉर्म में निकाला जाता है। ये सारा प्रोसेस जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव फेज में आता है, दैट बिलोंगिंग टू द ओवा फॉर्मेशन, आल्सो कॉल्ड oogenesis। एक साइक्लिक प्रोसेस फीमेल्स में चलता है जो रोटेशन होता है 28 डेज में, दैट कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, आल्सो नोन एज MC। At the end of MC,
28 डेज की एमसी जब वापस रिपीट होती है तो बेसिकली वहां पर ब्लीडिंग होती है थ्रू द पैसेज ऑफ वेजाइना. दिस इज कॉल्ड मेंसेस और पीरियड, राइट. फर्स्ट पीरियड जो बेबी में आता है, गर्ल्स में आता है, उसे मिनार्के कहते हैं. और एट द एंड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी 40 to 45 एज पर जाकर के ये फिनिश हो जाता है. लास्ट जो एमसी आता है उसको कहते हैं मेनोपॉज. दिस इज द एज ऑफ सीजिंग ऑफ एमसी. सो एमसी में क्या हो रहा है, साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है. ड्यूरिंग दिस साइक्लिक प्रोसेस ओवा फॉर्मेशन अकर्स हियर. तो ओवा फॉर्मेशन होने के बाद जो ओवा बनता है वो ओवरी से बाहर निकलता है. दैट्स कॉल्ड ओवुलेशन. ओवुलेशन रिलीज होने के बाद बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है यदि फर्टिलाइजेशन ना हो. फर्टिलाइजेशन क्या होता है वो आगे के चैप्टर में रिप्रोडक्शन में आपने क्लियर कर लिया होगा, राइट. दिस इज द बिकॉज ऑफ. सो रिप्रोडक्टिव फेज आर रिलेटेड टू दिस पॉइंट. दिस इज ऑल अबाउट योर टुडे सेशन. नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ बेबी एंड हॉर्मोन्स अदर देन द सेक्स हॉर्मोन्स आल्सो सपोर्टिंग फॉर द सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ. द हाइजीन रखना जिससे बॉडी में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज ना हो. दिस इज ऑल अबाउट. टेक केयर. थैंक यू. बाय बाय.